আসসালামু আলাইকুম। প্রিয় দর্শক শ্রোতা, প্রিয় বন্ধুরা, ভারতবর্ষে মুসলিম সম্প্রদায়ের ধর্মীয় বিধিবিধান এবং তাদের ধর্মশালা বা ধর্মস্থলগুলো হিন্দুবাদী সংগঠনের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হওয়া বা টার্গেট করা কোনো নতুন ব্যাপার নয়। এর জন্য হিন্দুবাদী সংগঠন কর্তৃক একটি স্লোগানও দেওয়া হয়ে থাকে, যার অর্থ হলো অযোধ্যায় মাত্র দিয়েছে উকি, কাশী মথুরা এখনও বাকি। আর এ স্লোগানটি হিন্দুবাদী সংগঠন দ্বারা লাগাতারভাবে দেওয়া হয়েছে আর হচ্ছে, এবং এ স্লোগানের কারণে হিন্দু মুসলিমের মধ্যে অনেকবার বিবাদও সৃষ্টি হয়েছে। এসব বিষয়ে মুসলমানদের যেখানে একটি মত রয়েছে, অন্যদিকে হিন্দুদের মত ভিন্ন। কিন্তু বর্তমানে যে পরিস্থিতির সৃষ্টি হচ্ছে তা সত্যিই অবিশ্বাস্য। হিন্দুবাদী সংগঠন কর্তৃক এবার মথুরার শাহী ঈদগাহ মসজিদের সার্ভের দাবি করা হচ্ছে, এমনকি সার্ভের জন্য টিমও গঠন করা হয়েছে। এ বিষয়ে একজন মুসলিম সিনিয়র সাংবাদিক আব্দুর রহমান আবিদের একটি ইন্টারভিউ নেওয়া হয়েছে। তাকে হিন্দুবাদী সংগঠনের প্রচারিত স্লোগান তথা অযোধ্যায় মাত্র দিয়েছে উকি, কাশী মথুরা এখনও বাকি, উক্ত স্লোগানের বিষয়ে তার মত কী তা জিজ্ঞাসা করা হয়। উত্তরে তিনি বলেন, হিন্দুবাদী সংগঠন কর্তৃক এগুলো নতুন কিছু নয়। বিজেপি ও আরএসএসের মতো শক্তিশালী সরকারের প্রশ্রয় পেয়ে তারা এ পর্যন্ত যে সকল হুমকি দিয়ে এসেছে তা পূরণ করেছে এবং আগেও করবে। এর আগেও তারা অযোধ্যার মতো আরও কয়েকটি বিষয়ে অবৈধভাবে আদালতের পক্ষ থেকে নিজের পক্ষে রায় নেয়। আর ভারতবর্ষকে ধ্বংস করার জন্য তারা তাদের অহিতুক ও নেতিবাচক প্রোপাগান্ডা চালাচ্ছে, আর এভাবেই চালিয়েই যাবে। বন্ধুরা, আপনারা নিজেই তার বলা কথাগুলো শুনুন। ये सब तो होना ही है। और जब बीजेपी की अपनी सरकार है और अपनी ताकतवर सरकार है, तो वो जितने उसे जो कुछ भी उन्होंने कहा हुआ है वो करेंगे और कर रहे हैं कि करके। पहले उन्होंने अयोध्या को जो है अदालत को के चीफ जस्टिस को इस्तेमाल कर लिया सौदेबाजी करके। उस पर पहले एक रेप का औरत से केस लगवाया, फिर उससे जो है खुफिया समझौता करके जो है अयोध्या का फैसला अपने पक्ष में लिया। इसी तरह राफेल का फैसला उससे लिया। इस तरह के कई गैर कानूनी फैसले उस कानून की अदालत से इन्होंने लिए और लेकर के दुनिया देख रही है कि भाई ये बेईमान लोग हैं, झूठे हैं, फ्रॉडी हैं, तो ये हिंदुस्तान को तबाह करने के लिए आए हैं, कर रहे हैं अपने एजेंडे पर काम। क्योंकि इनका काम जो है बर्बाद करने का है, बर्बादी का एजेंडा है इनका, उसको लागू कर रहे हैं अपने। প্রিয় বন্ধুরা, আপনারা সে সিনিয়র সাংবাদিকের কথাগুলো শুনলেন। তারপর তাকে আরও জিজ্ঞেস করা হলো যে যেমনটা অযোধ্যা ও বাবরি মসজিদের সাথে ঘটেছে, তাছাড়া জ্ঞানব্যাপী মসজিদের সময় আদালত কর্তৃক হিন্দুদের পক্ষ থেকে সিদ্ধান্ত দেওয়া হয়েছিল তাদের পক্ষ থেকে মসজিদে পূজা করার আবেদন জানানো হলে সেটাতেও অনুমতি দেওয়া হয়েছিল। তাহলে এবার মথুরার শাহী ঈদগাহ মসজিদের ক্ষেত্রেও কি ঠিক তাই হতে চলেছে? এ বিষয়ে তিনি কি মনে করেন বলে প্রশ্ন করা হয়। উত্তরে তিনি বলেন, হিন্দুবাদী সংগঠনের মূল উদ্দেশ্য বা প্রোপাগান্ডা হচ্ছে ভারতবর্ষকে ধ্বংস করা, আর তারা ভারতকে ভারতের নামেই ধ্বংস করছে। ভারতকে রাষ্ট্রবাদের নামে ধ্বংস করা হচ্ছে। তাই এখন শুধুমাত্র অযোধ্যা, কাশী, মথুরা পর্যন্ত সীমিত নয়। তারা এভাবে কাশ্মীর, পাঞ্জাব, পূর্ব উত্তর রাজ্যসহ আরও সকল জায়গায় এভাবে একের পর এক ধনসংযোগ চালাবে এবং ধ্বংস করে ফেলবে। এখন সবেমাত্র শুরু হয়েছে। এছাড়া তারা সাধারণ হিন্দুদের চোখে মুসলমানদেরকে শত্রু হিসেবে পরিচয় দিয়ে মুসলমানদেরকে মোহরা বানিয়ে ভারতকে ধ্বংস করার প্রোপাগান্ডার কার্য সম্পাদন করছে। মুসলমানদেরকে হিন্দুদের মিথ্যা শত্রু হিসাবে দেখিয়ে তারা তাদের নিজ উদ্দেশ্য সাধন করছে। অথচ ভারতবর্ষে হিন্দু ও মুসলমানের 1100 বছর পুরনো সম্প্রীতি ও ভালোবাসার ইতিহাস রয়েছে। 1100 বছরের বেশি সময় ধরে হিন্দু ও মুসলিম একসাথে মিলেমিশে বসবাস করছে। আর 800 বছরের বেশি সময় ধরে মুসলমানরা ক্ষমতায় ছিল। মুসলমানরা যদি আসলে হিন্দুদের শত্রু থাকতো, তাহলে মুসলমানরা চাইলে হিন্দুদের শক্তি ও ক্ষমতার দাপটে ধ্বংস করে দিতে পারত, কিন্তু তারা এমনটা করেনি। আর বর্তমানে ভারতে হিন্দুত্বদের ক্ষমতা হওয়া সত্ত্বেও কিছু কিছু কট্টরবাদী হিন্দুরা অন্যান্য হিন্দুদেরকে মুসলমানদের থেকে ভয় দেখিয়ে থাকে, এই বলে যে হিন্দুরা মুসলমানদের থেকে বিপদে আছে। বন্ধুরা, সেই সিনিয়র সাংবাদিকটি আরও অনেক কিছু বলেছেন, যেটার ভিডিও ক্লিপ আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করতে চাই। আপনারা তার কথাগুলো শুনুন। सिर्फ अयोध्या, काशी, मथुरा का मामला नहीं है। मैंने आपसे एक बात कही है कि इन लोगों का एजेंडा बर्बादी का एजेंडा है, और ये लोग उस भारत की बर्बादी के एजेंडे को लेकर के आए हैं। तो उसके लिए लेकिन एक फ़र्क है,
जो लोग उमूमन जो है उसको जब विश्लेषण करते हैं उसको समझ नहीं पाते हैं या उसको ध्यान में नहीं रख पाते हैं, वो ये है कि ये लोग जो भारत को बर्बाद कर रहे हैं वो भारत के नाम पे ही बर्बाद कर रहे हैं और भारत को राष्ट्रवाद के नाम पे बर्बाद कर रहे हैं। तो ये सिर्फ अयोध्या, काशी, मथुरा नहीं, बल्कि ये कश्मीर, पंजाब, पूर्वोत्तर राज्य, अरुणाचल, फलां, ये तमाम को एक एक करके हर जगह बर्बादी का नंगा नाच इसी तरह होगा। अभी तो चूंकि इनका मेन एजेंडा बर्बादी है और उस एजेंडे को लागू करने के लिए इनके पास एक सबसे बड़ा मोहरा जो इन्होंने बनाया हुआ है वो मुसलमान की एक फर्जी दुश्मनी दिखा ली है। हिंदुओं को एक फर्जी दुश्मन खड़ा करके दिखाया। मिसाल के तौर पर मेरी तस्वीर या मेरे जैसे 100, 200, 500 लोगों की एक तस्वीर एक फर्जी दुश्मन के तौर पर ये लोग दिखाते हैं, देखो ये हिंदुओं के दुश्मन है। अबे भाई, अगर ये हिंदुओं के दुश्मन होते तो इस मुल्क में 1100 साल से ज्यादा हो गए रहते हुए, हिंदुओं के साथ रहते हुए, तो भैया अगर ये हिंदुओं के दुश्मन होते और जब 800-900 साल तो पावर में रहे हैं, अगर ये हिंदुओं के दुश्मन होते तो उस वक्त खा जाते हिंदुओं को। तो अब कौन सा खतरा हिंदुओं को हो गया? मैं वही तो कह रहा हूं ना कि जब 800-850 साल तक पावर में रह करके मुसलमान हिंदुओं का दुश्मन नहीं हुआ और हिंदुओं को नहीं खा सका, तो अब जब हिंदुओं की हुकूमत है और हिंदुओं में भी उन हिंदुओं की जो अपने आप को हिंदू धर्म के ठेकेदार कहते हैं, हालांकि मैं फिर कहता हूं कि इनका बर्बादी का एजेंडा है। ये जो है झूठ, फ्रेब, फ्रॉड और बर्बादी के एजेंडे को लेकर के ये लोग आए हुए हैं। उसी को लागू करने के लिए ये हिंदुओं को एक झूठा डर दिखाते हैं। ये तो हिंदुओं के सोचने की बात है ना, आम हिंदू नागरिक के सोचने की बात है कि यार ये जो लोग बोलते हैं, चलो थोड़ी देर के लिए मान लिया कि भाई ये बोल रहे हैं, लेकिन सवाल ये है कि क्या 1100 साल से हिंदू और मुसलमान इस मुल्क में मिलकर के रहते आए हैं? सत्ता में राजा मुसलमान रहा तो उसकी फौज का फौजी जो है कमांडर हिंदू रहा, हिंदू राजा रहा तो फौज का कमांडर मुसलमान रहा। तो मुसलमान और हिंदू तो इस मुल्क में इस तरह से रहते आए हैं, तारीख तो ये है इस देश की। लेकिन जिस तरह से ये एक दूसरे का शत्रु बना करके पेश कर रहे हैं कि जैसे मुसलमान हिंदुओं का शत्रु है और हिंदू मुसलमानों का शत्रु है, तो इस तरह से जो ये पेश करते हैं, इस पेश करने के पीछे इनका मकसद वही है कि लोग जो है सच्चाई को थोड़ी देर के लिए भूल जाएं इनके झूठे प्रोपेगेंडे की वजह से, और इनके झूठे प्रोपेगेंडे का शिकार होकर के लोग नफरत के माहौल में जो है रंग जाएं और नफरत की इस आंधी को चला करके ये अपना खेल खेले। और इस खेल में ये बड़ी हद तक कामयाब भी है। देखिए आपने अयोध्या से शुरू किया, अयोध्या, काशी, मथुरा, लेकिन इस बीच में क्या क्या हो गया? मंदिर बना दिया आपने, बहुत बड़ा मंदिर बना दिया। लेकिन मंदिर में फिर कहता हूं, और हिंदू कहेगा इस बात को, कि मंदिर जो है 105 करोड़ हिंदुओं का पेट नहीं भर सकता। आप काशी भी छीन लीजिए, आप मथुरा भी छीन लीजिए, आप सारे हिंदुस्तान के मुसलमान की हर चीज छीन लीजिए, लेकिन हिंदुओं का पेट नहीं भर सकता। ये छीनना और ये नफरत। हिंदुओं का पेट भरेगा क्या? कि जब इस मुल्क में खुशहाली आएगी, इस मुल्क को रोजगार मिलेगा, इस मुल्क का पढ़ा लिखा नौजवान जो है रोजगार के लिए दर दर जूते तोड़ता हुआ नहीं फिरेगा। आपको मालूम है कि बेरोजगार नौजवानों का क्या हाल है? एक तरफ तो वो लाखों लाख रुपए की फीस दे करके अपना कोर्स पूरा करके आते हैं, पढ़ाई करके आते हैं। एक एक बच्चे पे जो है माँ बाप के 20-20, 30-30 लाख, 50-50 लाख, और जो मेडिकल वगैरह की जो एजुकेशन लेते या हायर एजुकेशन लेते टेक्निकल, करोड़ों में हो रहे हैं खर्चे भाई। करोड़, 1-2 करोड़ रुपए एक बच्चे पे खर्च कर रहे हैं माँ बाप। और उसके बाद जो है वो बच्चा जूती टरखाते हुए फिरता। और जो नॉर्मल यानी मीडियम क्लास के बच्चे जो पास आउट करके आ रहे हैं 10-20 लाख, 30 लाख, 50 लाख के खर्चे से, वो पता क्या हो रहा है कि 8-8, 7-7, 10-10 साल जो है उनको नौकरी के तलाश में ढूंढने में लगाते हैं, और हर साल उनके 20-30, 50 हजार रुपए फार्म भरने में चले जा रहे हैं, जो गवर्नमेंट एक तरह से उनकी जेब पर दूसरा डाका डाल रही है कि उम्मीदवार जो है 50 लाख है और 5,000 की वैकेंसियां निकाल दी और 50 लाख लोगों के फार्म भरे गए। एक फार्म की फीस इन्होंने 500 रुपए रख दी। अब उसमें जो है जितनी नौकरी उन 5,000 लोगों को सारी जिंदगी में नहीं देंगे, ये जितने पैसे नहीं देंगे उनको, उससे ज्यादा जो है उनसे फार्म भरवा करके वसूल कर लिए पहले। अच्छा, आपने एक बात कही अब्दुल रहमान आबिद साहब, काशी, मथुरा या अयोध्या, आपने कहा सब ले लें, लेकिन यहाँ बात सिर्फ इन 3 जगहों की नहीं है। हिंदूवादी संगठनों के दावे तो यहाँ तक हैं कि जिस मस्जिद को भी हम खोदेंगे और सबको खोदेंगे, सबके नीचे हमारी मूर्तियां निकलेंगी और सब हम ले लेंगे। मैं ये कह रहा हूँ कि जब वो साहिल नकवी को खोदेंगे तो साहिल नकवी के पीछे भी 10 नस्ल पीछे, 15 नस्ल पीछे, अब्दुल रहमान आबिद के पीछे भी 10 नस्ल, 9 नस्ल, 15 नस्ल पीछे जो है कोई राम सिंह या नाथुराम, वही कोई निकलेगा। तो दावा तो इनका वहां भी आएगा। ये जो घर वापसी ये सब चला रहे हैं, देखिए असल में क्या है कि ये लोग पागल लोग हैं। नफरत में चूंकि आदमी पागल हो जाता है,
और नफरत की जब आग अपने अंदर जलती है ना आदमी के, तो वो पागल होकर के फिर पहले दूसरों को जलाता है और आखिर में जो है उस आग में खुद ही भस्म होकर मरता है। इनका असर वही होना है, आप इसको ज्यादा चिंता ना करें। मैं कह रहा हूं कि ये लोग बर्बादी का एजेंडा लेके आए हैं, ये पूरे मुल्क को बर्बाद करेंगे और इस मुल्क के साथ अपने आप भी बर्बाद होकर मर जाएंगे, आप देख लीजिएगा। इनका मसला सिर्फ अयोध्या काशी मथुरा को भूल जाइए आप, इनका मसला ये है, इन्होंने देखिए मैं जो आपको जहाँ ले जा रहा था, इन्होंने इन सब काशी वो जो अयोध्या में इन्होंने मंदिर बना लिया, सब इन्होंने काशी में जो इंक्वायरी और वो सब सर्वे और फला और फिर उसकी पेशी और फैसला महफूज और सारा ड्रामा कर लिया और सारे चैनल इन्होंने खरीद लिए। आज की तारीख में हिंदुस्तान में हिंदी ज़बान में एक भी चैनल आप कसम खाने के लिए ऐसा नहीं बता सकते हैं कि जो इनका गुलाम ना हो। एक NDTV बचा हुआ था, आखिर में वो भी स्वाहा हो गया। वहाँ भी सत्य क्या होता है वो जो बोलते हैं जब यात्रा लेके जाते हैं अंतिम, राम नाम सत्य, राम नाम सत्य, तो उसका भी राम नाम सत्य कर दिया इन्होंने। तो भाई बात ये है कि ये लोग तो मुल्क की बर्बादी के लिए आए हैं। आज एयरपोर्ट आपके हैं क्या? रेलवे पब्लिक का रह गया क्या? आप बताइए ना मुझे, कौन सा ऐसा सेक्टर बचा है जो गवर्नमेंट की अपनी मिल्कियत बचा हो? सारा तो इन्होंने, वो जो किसी ने नाम इनको दिया है गोदी मीडिया का, गोदी मीडिया नहीं तो गोदी सरकार है बाबा, सरकार गोदी है। दो सेठों ने गोद ले रखा है इस सरकार को, तो उन्होंने सेठों ने सारा खरीद लिया है। ये बिल्कुल उसी तरह भारत बिक रहा है जैसे अंग्रेजों ने ईस्ट इंडिया कंपनी में वो चंद लोग आए थे यहाँ व्यापार करने के लिए, वैसे ही जो है उन्होंने जब धीरे धीरे सारा भारत गुलाम बना लिया था, खरीद लिया था, इसी तरह मोदी साहब जो है धीरे धीरे करके सारा भारत बेच रहे हैं, बेच चुके हैं। वो रेलवे उन्होंने बेच दिया, उन्होंने जो है सारे एयरपोर्ट्स बेच दिए, उन्होंने जो सारे तारीखी लाल किला तक बेच दिया, यार गिरवी रख दिया तो बेच ही दिया, और क्या है वो। तो उन्होंने छोड़ा कुछ नहीं। अब हेल्थ सेक्टर बचा हुआ है, आप कुछ दिनों में सुनेंगे कि हेल्थ सेक्टर भी बिक चुका है। अब एजुकेशन पूरी बेच दी, तमाम प्राइवेट कर दिया है। आज की तारीख में गरीब आदमी अपने बच्चे को कोई अच्छी टेक्निकल एजुकेशन अगर दिलाना चाहे नहीं दिला सकता, हायर एजुकेशन दिलाना चाहे नहीं दिला सकता। क्यों? उसके जेब में इतने पैसे नहीं है। अपना घर बार बेच करके, अब वो कुछ मिसालें जरूर आ जाते हैं जिनको ये बहुत ज्यादा हाईलाइट करा देंगे, और रिक्शा वाले का बेटा IAS हो गया। अरे भाई 150 करोड़ लोगों में से अगर एक बच्चा एक साल में 150 करोड़ में से एक रिक्शे वाला या एक चाय वाले का बेटा जो है आपने इस तरह करके ले लिया और उसको जो है बिल्कुल बेवकूफ बनाने पर लग गए हो पूरे हिंदुस्तान को, तो ये जो है ड्रामेबाजी है। इनका एजेंडा हिंदुस्तान की बर्बादी है और बर्बादी के एजेंडे को ये लागू कर रहे हैं। आप देखिएगा इन्होंने शुरू कर दिया है पंजाब में भी, पूर्वोत्तर राज्यों में भी। चीन हर दिन हर महीने कुछ ना कुछ आगे को बढ़ जाता है। अब ये जो है उस वक्त आंखें बंद करके जो है ध्यान ज्ञान में लग जाते हैं, उस वक्त कुछ नजर नहीं आता। फिर बाद में कहते नहीं कोई नहीं घुसा था, कोई नहीं घुसेगा, कोई नहीं घुसेगा, और वो सारा घुसता है। तो बस सवाल ये है कि अच्छा उनके झूठ को भाई कभी उनके भक्त जो हैं, जो उन्होंने पाले हुए हैं, वो 10-12 लाख अंधभक्त, वो जो है बहुत ही मैनेज तरीके से लोगों के ऊपर उस झूठ को सच बना करके मुसल्लत कर रहे हैं। लोग उस नशे को पी रहे हैं। जैसे चाय में बहुत से चाय वालों को आप देखें ना, बड़े चाय वाले मशहूर हो जाते हैं कि बड़ी बढ़िया चाय देता। वो चाय नहीं होता बढ़िया, वो जरा सी अफीम डाल देता उसमें एक चुटकी भर के बड़े भगोने में, वो बड़ा मजा आता है लोगों को पीने में। तो ठीक उसी तरह से ये अफीम नशे की नफरत की पिला रहे हैं और उसको पीने में भी जरा लोगों को मजा आ रहा है। लेकिन जैसे जैसे लोगों के बच्चे बेरोजगार खड़े हुए नजर आ रहे हैं, चूंकि कल छोटे थे वो आज बड़े हो रहे हैं, 8 साल हो रहे हैं ना, अभी 2 साल ये और पूरे होने दीजिए, पता चल जाएगा। तो जब रोजगार का मसला आता है, रोटी का मसला आता है, तालीम का मसला आता है, जब सेहत और स्वास्थ्य का मसला आता है, जब इलाज बीमारी का मसला आता है, उस वक्त आदमी को पता चलता है यार मैं तो धोखे में हूं, मैं तो इनके फ्रॉड का शिकार हो रहा हूं। ये लोग फ्रॉडी भी हैं, झूठे भी हैं, बेईमान भी हैं, मक्कार भी हैं, और ये देशद्रोही भी हैं। देशद्रोही असल में टुकड़े टुकड़े गैंग यही BJP RSS के लोग हैं जो अपने पापों को ये दूसरों के नाम मढ़ करके अपना धंधा कारोबार जो है झूठ फरेब का वो चला रहे हैं। বন্ধুরা আপনারা সিনিয়র সাংবাদিক আব্দুর রহমান আবিদ এর ভিডিও ক্লিপটি দেখলেন এবং তার বলা কথাগুলো শুনলেন ও বুঝলেন। তার মতে বর্তমানে ভারত সরকার দেশের শিক্ষা ব্যবস্থা, চিকিৎসা ব্যবস্থা ও বেকারত্বের মতো আরও গভীর সমস্যাগুলোকে ধামাচাপা দেওয়ার উদ্দেশ্যে ধর্মের নামে মানুষের মধ্যে বিবাদ সৃষ্টি করার চেষ্টা। আর যারা নিজেদেরকে ধর্মের দালাল মনে করে, নিজেকে কট্টর হিন্দু বলে পরিচয় দেয়, তারা অহেতুক উদ্দেশ্য সাধনের জন্য সরকারের সাহায্য করছে। তবে যেদিন তাদের মাথা থেকে এ সকল নেশার ঘোর কেটে যাবে, সেদিন ধর্মের লড়াই, ধর্মের ক্ষমতা ও দাপট কোনো কাজে আসবে না। বন্ধুরা আপনারা এতক্ষণ ধরে ভিডিওটি দেখলেন, শুনলেন এবং বুঝলেন। এই বিষয়ে আপনাদের মতামত কি তা কমেন্ট বক্সে অবশ্যই জানাবেন। এই ভিডিওটিতে একটি লাইক দিয়ে সোশ্যাল মিডিয়ার সমস্ত জায়গায় শেয়ার করে সকলকে ও সকল মুসলিম উম্মাহকে দেখার সুযোগ করে দিন।